Hello students, I am Sanjeet sir, your English teacher of Barrackpur Senate Public School, and today the lesson that I am going to explain you is the poem Upon Westminster Bridge written by William Wordsworth. But before discussing different aspects of the poem, let me introduce you to the poet. William Wordsworth was born on April 7, 1770 at Cockermouth in Cumberland. He attended the infant school in Penrith. After his mother died in 1778, he was brought up by his uncle, who sent him to Hawkshead Grammar School in the Lake region. He studied there from 1779 to 1786. His father, John Wordsworth, died in 1783. Right from his school days, he found interest in nature. He attended St. John's College, Cambridge from 1787 to 1791, but he did not like formal education. In 1790, he went to France and spent a year there. During this period, he was influenced by French Revolution. After returning from France, he, along with his sister Dorothy, settled in a little cottage in Dorset. Now, let me give you the substance of the poem. London looks beautiful in the light of the morning sun. Its beauty excels any other beautiful scene on earth. A person who remains indifferent to such an impressive sight is dull to all senses of beauty. Bathed in the early morning sun, the city seems to wear a new garment. Ships, towers, domes, theatres, and churches are now widely open to fields nearby and the sky above. The air is smokeless. So, all objects of the city look bright and shining. The rays of the morning sun fall steadily on the city that it makes the day different from other days. The poet thinks that he has never experienced such a deep calmness. The river Thames flows freely. The houses in the city appear to be asleep. The poet feels that the mighty heart of London is still lying in silent slumber. Now, let me tell you about the theme of the poem. The sonnet presents the beauty of a great city in a sunny morning. ये जो पोएम जो एक सोनेट है, सोनेट क्या होता है? सोनेट इज़ अ पोएम हैविंग 14 लाइन्स. जिस पोएम में 14 लाइन्स होता है उसे सोनेट कहा जाता है. द सोनेट प्रेजेंट्स द ब्यूटी ऑफ ए ग्रेट सिटी इन ए सनी मॉर्निंग. ये ग्रेट सिटी कौन है? लंदन. तो एक मतलब सुबह में जब सूरज बहुत सुंदर से उठा है उस समय का ये जो लंदन सिटी का जो ब्यूटी है उस ब्यूटी को इस सोनेट में प्रेजेंट किया गया है. द लंदन इन द ईयर 1802 वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे. 1802 साल का जो लंदन था वो लंदन आज का लंदन से बहुत फ़र्क है. देन द सिटी ऑफ लंदन वॉज नॉट ओनली अ सिटी बट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वाइड कंट्री साइड. उस समय का जो लंदन था वो सिर्फ एक शहर नहीं था, वो जो कंट्री साइड जो था वो कंट्री साइड का एक हिस्सा था. इफ़ द कंट्री साइड वॉज द बॉडी, द सिटी वॉज इट्स हार्ट. अगर कंट्री साइड को बॉडी माना जाए तो इस लंदन शहर को बताया जा सकता है जो वो उसका हार्ट है, हृदय है. हियर दिस हार्ट दैट इज़ द सिटी ऑफ लंदन सीम्स टू बी एट रेस्ट. अभी ये हार्ट मतलब ये जो लंदन शहर है लग रहा है अभी रेस्ट कर रहा है. वन मे ऑल्सो थिंक दैट द स्पिरिट ऑफ सिटी ऑफ लंदन इज़ एट रेस्ट. किसी को लग सकता है जो लंदन शहर का जो स्पिरिट है अभी वो सो रहा है. बेस्ड इन द अर्ली मॉर्निंग सन, लंदन विथ इट्स शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. तो सुबह का सूरज का रोशनी में नहाते हुए ये लंदन शहर को बहुत अच्छा लग रहा है. उसका
शिप्स के साथ, टावर्स के साथ, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स, ये सब के साथ बहुत सुंदर दिख रहा है लंदन शहर को। द सिटी itself becomes one with the adjacent fields and the sky overhead। तो दूर में जो फील्ड्स है और जो आसमान है लग रहा है दोनों एक साथ मिल गया है। ओके, द कामनेस ऑफ द मॉर्निंग इज़ रियली फैसिनेटिंग। सुबह का जो शांत जो परिवेश है वो बहुत सुंदर है। द अमेजिंग ब्यूटी एंड क्वाइटनेस ऑफ द मॉर्निंग सीन टच द पोएट्स हार्ट। तो सुबह का जो शांत परिवेश और वो जो लंदन शहर का जो ब्यूटी, ये पोएट का हार्ट को टच करता है। Now I am going to discuss some of the important questions and answers from the poem. The first question is, the earth has not anything to show more fair। अर्थात दुनिया में और कोई भी चीज़ सुंदर नहीं है देखने के लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस। इसके द्वारा कवि क्या समझाना चाहता है। वाई डज द ओपनिंग लाइन सीम्स टू बी स्ट्राइकिंग। ये ओपनिंग लाइन ये स्ट्राइकिंग क्यों है। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द साइट ऑफ द सिटी ऑफ लंदन इन द अर्ली मॉर्निंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब द साइट ऑफ द सिटी ऑफ लंदन इन द अर्ली मॉर्निंग में लंदन शहर का जो सौंदर्य है वो बहुत ही सुंदर है। द ब्यूटीफुल साइट हैज़ इम्प्रेस्ड द पोएट सो मच दैट द पोएट थिंक्स नो सीन इन द वर्ल्ड इज़ एज ब्यूटीफुल एज द साइट ऑफ द सिटी। और ये ब्यूटीफुल सीन कवि को इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया जो कवि को लगता है ये दुनिया भर में ऐसी कोई भी सुंदर चीज़ नहीं है जो इस शहर से और ज़्यादा सुंदर है। नथिंग कैन बी कंपेयर्ड टू द ब्यूटी ऑफ दिस अर्ली मॉर्निंग साइट ऑफ लंदन। तो ये सुबह का जो लंदन शहर का जो दृश्य है इसके साथ कोई चीज़ का तुलना किया नहीं जा सकता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डज द ओपनिंग लाइन सीम्स टू बी स्ट्राइकिंग। द ओपनिंग लाइन सीम्स टू बी स्ट्राइकिंग because the poet of nature makes an unusual statement about the beauty of the city of London. The second question is, a sight so touching in its majesty। एक दृश्य जो इतना टचिंग है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द साइट रेफर टू हियर। यहाँ पर किस दृश्य के बारे में बताया गया है। What does the poet feel about the sight? कवि को इस दृश्य के बारे में क्या महसूस होता है। Who would be dull of soul and why? किसको हम लोग insensitive कह सकते हैं और क्यों। So the answer of the first question is, the beautiful scene of London glittering brightly in the light of the early sun is the sight referred to here। यहाँ पर लंदन शहर के दृश्य के बारे में बताया गया है जो लंदन शहर सुबह का रोशनी में पूरा डूबा हुआ था और उसमें जगमगा रहा था। अर्थात सुबह का रोशनी में ये लंदन शहर बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट द साइट। कवि को क्या महसूस होता है। द पोएट फील्स दैट द साइट इज़ हाईली इम्प्रेसिव इन इट्स स्प्लेंडर। कवि को लगता है जो ये जो दृश्य है ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग है। इन इट्स स्प्लेंडर दैट इज़ इन इट्स ब्यूटी। हाँ, मतलब इसका सौंदर्य बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसको हम लोग इनसेंसिटिव बोल सकते हैं और क्यों बोल सकते हैं। अ पर्सन हु वुड पास बाय द वेस्टमिंस्टर ब्रिज ऑन एन अर्ली मॉर्निंग एंड स्टिल फेल टू नोटिस द ब्यूटी ऑफ द सिटी ऑफ लंदन बेड इन द अर्ली मॉर्निंग सनलाइट वुड बी डल ऑफ सोल। कवि को लगता है एक इंसान जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज का पास से गुजरते हुए जाएगा, लेकिन अगर वो इंसान सुबह का रोशनी में नहाया हुआ जो लंदन शहर है उसका जो ब्यूटी है वो देखने में अगर सक्षम ना हो तो उस इंसान को इनसेंसिटिव कहा जा सकता है। द सीन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ वेरी चार्मिंग। कवि के मत अनुसार ये जो सीन है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इट कैन टच ऑल हार्ट्स एंड अपील टू ऑल सेंसिटिव सोल्स। ये हर दिल को छू सकता है। ये लंदन शहर का जो सौंदर्य है जो अर्ली मॉर्निंग में ये कोई भी दिल को छू सकता है।
एंड अपील टू ऑल सेंसिटिव सोल्स, और जितना सेंसिटिव सोल्स है उसको टच कर सकता है। बट ए पर्सन indifferent to such glorious beauty is sure to be dull because of lack of aesthetic sense। लेकिन एक इंसान जो इतना सुंदर दृश्य के प्रति इनडिफरेंट होगा, मतलब ये इतना सुंदर दृश्य के प्रति जो सेंसिटिव ना होगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं उसका अंदर ब्यूटी के बारे में जो सेंस, वो सेंस नहीं है। The next question is, the city now doth like a garment wear। What does the poet mean by this? तो अब ये सिटी एक कपड़ा पहना हुआ है। What does the poet mean by this? कवि इसके द्वारा क्या समझाना चाहता है? What is the city referred to here? यहाँ पर कौन सिटी के बारे में बताया गया है? The city of London seems to wear the garment of the beauty of the morning। तो कवि को लगता है ये लंदन शहर जो है, सुबह का जो सौंदर्य होता है धूप का, उस धूप का जो सौंदर्य वो पहना हुआ है ये लंदन सिटी। द ब्राइट लाइट ऑफ द सन कवर्स होल सिटी। तो सूरज का जो रोशनी है वो रोशनी पूरा शहर को ढाक दिया। दिस गारमेंट ब्यूटिफाइज द सिटी बाय हाइडिंग इट्स नॉइज एंड अगलीनेस। और ये गारमेंट उस सिटी का जो नॉइज़ है और जो अगलीनेस मतलब जो ख़राब चीज़ें उसको ढाक दिया है। सीट्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स, एडजेसेंट फील्ड्स एंड द स्काई अबव आर ग्लिटरिंग ब्राइटली इन द स्मोकलेस एयर। तो सीप से, टावर से, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स, एडजेसेंट फील्ड्स एंड द स्काई अबव सब कुछ जगमगा रहा है स्मोकलेस एयर। तो उस समय जो एयर था वो स्मोकलेस था, क्योंकि तभी भी मतलब शहर में सब कुछ चालू नहीं हुआ। therefore the atmosphere is very clear and bright, and therefore everything could be seen very clearly and distinctly। अच्छा, next question is, what is the city referred to here? यहाँ पर कौन सिटी के बारे में बताया गया है? The city referred to here is the city of London। यहाँ पर लंदन शहर के बारे में बताया गया है। bathed in the light of the rising sun, जो सूरज उठ रहा है उसका धूप में नहाते हुए जो ये शहर है, मतलब जो उस धूप में पूरा ढका हुआ है, उस लंदन शहर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट एंड बेयर। हाँ, सुबह का जो ये जो ब्यूटी है ये साइलेंट है और खाली है, बेयर। हाँ, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट ब्यूटी डज द पोएट रेफर टू? कवि कौन ब्यूटी के बारे में यहाँ पर बता रहा है? वाई इज़ द ब्यूटी कॉल्ड साइलेंट एंड बेयर? और वो ब्यूटी को साइलेंट एंड बेयर क्यों बोला गया है? द पोएट रेफर्स टू द ब्यूटी ऑफ लंदन व्यूड फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर ब्रिज। कवि लंदन शहर के ब्यूटी के बारे में बताया है, जो ब्यूटी उसने वेस्टमिंस्टर ब्रिज से देखा था। bathed in the light of the morning sun, London looks beautiful। सुबह का सूरज का रोशनी में नहाते हुए लंदन शहर को बहुत बहुत सुंदर दिख रहा था। Why is the beauty called silent and bare? ये ब्यूटी को साइलेंट और बेयर क्यों बताया गया है? The beauty is silent because it is early in the morning। तो वो ब्यूटी साइलेंट था क्योंकि वो बहुत सुबह सुबह था। सुबह सुबह आदमी जगह नहीं है। नो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स वॉज देयर। हाँ, कोई गाड़ी ये सब नहीं चल रहा है। ओके, द मिल्स एंड फैक्ट्रीज वेर स्टिल येट टू स्टार्ट देयर फंक्शनिंग। हाँ, मतलब मिल्स फैक्ट्रीज ये सब में काम काज अभी भी शुरू नहीं हुआ है। देयरफॉर इट वॉज साइलेंट। द ब्यूटी इज साइलेंट बिकॉज इट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये ब्यूटी साइलेंट है क्योंकि ये बहुत सुबह सुबह था। एंड द होल सिटी इज़ नाउ एट रेस्ट। और पूरा जो शहर वो तब रेस्ट कर रहा था, मतलब पूरा शहर का जो आदमी है वो सो रहा था। देयर इज़ नो नॉइज़, कोई आवाज़ नहीं था। इट इज़ बेयर बिकॉज इन द स्मोकलेस एयर ऑफ द मॉर्निंग एवरीथिंग इज़ डिस्टिंक्टली विजिबल। और ये बेयर था, ये खाली था बिकॉज क्योंकि इन द स्मोकलेस एयर ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का स्मोकलेस एयर में एवरीथिंग इज़ डिस्टिंक्टली विजिबल, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखा जा रहा था। एवरीथिंग इज़ ग्लिटरिंग ब्राइटली, सब कुछ बहुत सुंदर से जगमगा रहा था।